Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 6 till 20 हम पढ़ेंगे। आज का पवित्र कलाम इफिसियों चैप्टर 5 वर्स 6 till 20 हम पढ़ेंगे। I'll read in English and in Hindi as well. And before the meditating on the word of God, come let us surrender to the Lord in prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। यावा राफा यावे यरोम यावे शलोम यावे यरी यावे लोहिम। God the Son, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, Holy Mother of the Lord, we are so thankful to you for your unconditional mercy and blessing. Make me able to read and speak the word of God with the presence of Holy Spirit, and whomsoever, whensoever, wheresoever, with any source, Father Lord, read or speak or listen or watch the word of God, Father Lord, may that person also be super blessed with the power and strength of Yahweh Parmeshwar, and may our faith increase every breath we take. In Jesus' precious name we ask this prayer with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. Amen and amen. I'll read in English, then in Hindi. Ephesians chapter 5 verse 6 till 20. Do not let anyone deceive you with foolish word. It is because of these very things that God's anger will come upon those who do not obey him. So have nothing at all to do with such people. You yourself used to be in the darkness, but since you have become the Lord's people, you are in the light, so you must live like people who belongs to the light. For it is the light that brings rich harvest for every kind of goodness, righteousness, and truth. Try to learn what pleased the Lord. Have nothing to do with the worthless things that people do, things that belongs to the darkness. Instead, bring them out to the light. It is really too shameful even to talk about the things they do in secret. And when all things are brought out to the light, then their true nature are clearly revealed. For anything that is clearly revealed become light. That is why it is said, wake up, sleeper, and rise from death, and Christ will shine on you. So be careful how you live. Do not live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Don't be fooled then, but try to find out what the Lord wants you to do. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with the words of psalm, hymns, and sacred songs. Sing hymns and psalms to the Lord with praise in your heart. In the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. This is the word of God. Praise be to God. Amen. I'll read in Hindi. Ephesians chapter 5 verse 6 till 20. कोई निर्धक तर्कों से आप लोगों को धोखा ना दे। इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर आ पड़ता है। इसलिए उन लोगों से कोई संबंध ना रखें। आप लोग पहले अंधकार थे,
अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय है। लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। वे जो काम गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों के बुराई प्रकट करती और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको अधोलोकित कर देंगे। अपने आचरण का पूरा ध्यान रखें, मूर्ख की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमान की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग नासमझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गीत गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु यीशु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर बनी रहे। आमीन। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने हमें एक बार फिर ये कहा, टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि ये जो नींद की बात हो रही है कि नींद से जागो, ये वो नींद की बात नहीं है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोते हैं और उसके बाद फिर जाग उठते हैं फॉर द नेक्स्ट डे टू डे लाइफ वर्किंग। चाहे हमने स्कूल जाना हो, बच्चों ने हमने उनकी प्रेपरेशन करनी हो, चाहे आपने ऑफिस जाना हो, चाहे आपने किसी अन्य कार्य के लिए जाना हो, या कोई भी आपके कार्यक्रम जो भी आपने प्लान अप किए होते हैं, वो सारे काम जब आप कर रहे होते हैं, जब आपने वो करने हैं, वो नई सुबह के लिए आप प्लान अप करते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि अंधकार से बाहर आओ। वो अंधकार क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? वो अंधकार है जो आपके साथ होते हुए भी आपके नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जो लोग आपके साथ होते हुए भी आपके नहीं हैं, उस अंधकार से जागो। यहां पे लिखा गया परमेश्वर के कलाम में, वेक अप यू स्लीपर एंड राइज फ्रॉम द डेथ। ये कहा गया, परमेश्वर ने कहा कि संसारिक जीवन में भी जीवित होते हुए भी मृतकों की तरह ना रहो। और उससे पहले कहा गया कि जब अंधकार से एक पर्दा उठता है आपकी नज़र पे, लोग बहुत सी बार कह देते हैं कि उसकी नज़र पे तो पर्दा पड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे कहा कि जब डार्कनेस हटती है तब वो चीज़ें क्लियर हो जाती है बिटवीन द पर्सन्स। यहाँ लिखा है, आई एम फाइंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, क्लैरिटी हो जाती है। इट्स रिटन द क्लैरिटी वर्ड।
Don't be ignorant and the wise people make opportunities become science speak secret. Yes, it's written here. I'll read the verse 10 and 11 and till 13. Have nothing to do with the worthless thing that people do. उन चीजों से या उन कार्यों से आपका कोई लेना देना नहीं है जो अन्य लोग कर रहे हैं. Right? People do things that belongs to the darkness. Instead, bring them out to the light. जब आप मसीह के द्वारा चुन लिए गए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने ले लिया, उस समय आपको परमेश्वर ने कहा, ये वचन वो कह रहा है कि जो लोग अंधकार में पड़े हैं, इट इज आवर ड्यूटी टू ब्रिंग देम ऑल्सो इन द लाइट. और यहां लिखा, it is really too shameful even to talk about the things they do in secret. बहुत से लोग अंधेरे में इस तरह के काम करते हैं. इट्स नॉट अबाउट ओनली, बहुत सी बार जब ये कहा जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी के रिलेटेड, ये कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं दिमाग में जो एक नॉर्मल पर्सन या जो नेगेटिविटी उनके दिमाग में डालती है. लेकिन हमारा कंसर्न वो नहीं है कि अंधेरे में क्या हो रहा है. हमारा कंसर्न है कि वो इस तरह के काम करते हैं कि जिसके बारे में बात करना भी बहुत शर्मनाक हो जाता है. एंड व्हेन ऑल थिंग्स आर ब्रॉट out to the light, then their true nature is clearly revealed. For anything that is clearly revealed become light. बहुत सी बार आपके सराउंडिंग्स में इस तरह के लोग होते हैं जो आपके फेस पे कुछ और होते हैं और बैक बाइट आपकी जगह जगह जाके करते हैं. यहां पे कहा गया कि जब इस तरह की बातें बाहर आती हैं या उनके नेचर के बारे में पता चलता है, जो वो उनका बारे में या उनके सीक्रेट्स जब आपको पता चलते हैं, तो उनकी जो बातें होती हैं जो आपके खिलाफ बोली जा रही होती हैं, वो क्लियरली रिवील्ड हो जाती है और उस समय वो अपना ट्रू कलर आपको दिखाने लगते हैं. सो हमारे को बिफोर क्लोजिंग दिस द वर्ड टुडे, ये कहा गया, कंप्लीटिंग द वर्ड टुडे, लास्ट में कहा गया कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, भजन और वीणा बजाते हुए धन्यवाद करो, और in the name of our Lord Jesus Christ always give thanks to everything to the God the Father. Whatever we have, we should give thanks to the Lord. Whatever, especially the breath we are taking. Every second, every breath we should give thanks. We need not to tell anybody. We should give thanks in our heart, in our mind, in our soul. ये परमेश्वर का पाक कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर बनी रहे. आमीन. आइए हम प्रार्थना में आएंगे. धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी. आपने हमें अपने पवित्र कलाम में बताया प्रभु जी कि अंधकार से बचना है और सही संगत में बैठना, और जो अंधकार की बातें करते हैं उनसे हमारा कोई नाता नहीं. मेरे यहोवा परमेश्वर, इस योग्य कर कि हर सांस, हर पल, हर लम्हा, हर सेकंड सिर्फ और सिर्फ आप ही का धन्यवाद दें. आप ही के पवित्र 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 अति पवित्र नाम की जय जयकार करें. आप ही की जय जयकार हो. मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की जय जयकार हो. हमारे प्रभु पवित्र आत्मा की जय जयकार हो. हमारे प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर की जय जयकार हो. मां मदर मैरी के प्यार की जय जयकार हो.
धन्यवाद करते प्रभु जी एक बार फिर for your unconditional love, mercy and blessing. Make us able to increase our faith and give thanks to the Lord for his unconditional love. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name, we give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed is the fruit of the womb, Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with every believer, pastor, preacher, and also with me, my wife, our kids, my brother, and our family member. In the name of thee, God the Father, God the Son, Yeshua Masih Nasri, God the Holy Spirit, love of Mother Mary. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.